So lecture number 7. So in this lecture we will discuss some of the example how we can find the Gallus group of any polynomials. So the first question, which is a find the Gallus group of this polynomial. So first of all I will discuss the question to find the Gallus group of this polynomial. So first question, here the given polynomial is fx, which is equal to x cube minus 2 over set of rational number. So first check that is it irreducible. So we will check with the help of Einstein's criteria. Einstein criteria to check that this polynomial f of x, so this is a irreducible over क्या. So we already did many questions to check that this is a irreducible polynomial. So बिल्कुल उसे ढंग नाल ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਰਰੀਡਿਊਸੀਬਲ ਹੈ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਰਰੀਡਿਊਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ, ਰੂਟਸ ਆਫ fx. ਸੋ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/3 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/3 ओमेगा 2 रेज टू पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा की है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. हुण स्प्लिटिंग फील्ड दे विच जिहड़े इहदे एलीमेंट्स आ वो किहड़े आ जाणगे, एक ओमेगा आ जाएगा, एक 2 रेज टू पावर 1/3. सो इफ आई टेक k, so q is generated by 2 raised to power 1/3 and omega. So what is this? It is a splitting field of fx, splitting field of fx over क्या. तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਲਈ तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. तो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 2, ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ x ਪਲਸ 1. तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਆਫ k ਓਵਰ q ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਆਫ k ਓਵਰ q, so this is equal to 6. 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਸਟ 1 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/3, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2/3, ਫਿਰ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. So this is omega 2 raised to power 1/3 into omega 2 raised to power 2/3 into omega. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ of k over q. ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਓਮੇਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ,
और दूजे दे रूट्स रह गए दिस इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो टोटल पॉसिबिलिटीज़ अपने को 6 हो गई। जे 6 हो गई तो सानू एक चीज़ बारे क्लीयर आ कि जिहड़ी साडे कोल के है क्यू 2⁻⁴ and this is omega. So this is a finite number 1 और नॉर्मल एक्सटेंशन भी है, सैपरेबल भी है क्योंकि ये जिहड़े रूट्स आ वो डिस्टिंक्ट आ। फाइनाइट सैपरेबल एक्सटेंशन ऑफ क्यू है, ठीक है जी। फाइनाइट सैपरेबल एक्सटेंशन क्योंकि ये डिग्री कितनी आ गई 6 आ गई, सो फाइनाइट हो गया। रूट डिस्टिंक्ट आ इस करके सैपरेबल हो गया। सो इट मीनस इट इंप्लाइज के साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन भी हो जाएगा। नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्या और क्यू का करैक्टरिस्टिक कितना है 0 के बराबर आ। ये भी सानू पता अगर क्यू का करैक्टरिस्टिक 0 है तो साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन हो गया। और नॉर्मल एक्सटेंशन नाल क्या हुंदा कि ऑर्डर ऑफ जी के क्यू ऑर्डर ऑफ गैलिस ग्रुप के क्यू ये किहदे बराबर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ या डिग्री ऑफ के ओवर क्यू किहदे बराबर है 6 के बराबर। सो ये 6 आटोमॉर्फिज्म होणगियां जी के क्यू दे विच। अगर मैं कोई भी सिग्मा जी के क्यू दे विच लै लिया, ठीक है जी, तो साडे कोल सिग्मा ऑफ अगर 2⁻⁴ ये भी कंजूगेट आ, ये भी उहदा रूट हो गया। सो इहदियां 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई और इदां ही साडे कोल ओमेगा उस ओमेगा का कंजूगेट हो गया। तो सिग्मा ऑफ 2⁻³ दियां कितनियां पॉसिबिलिटीज़ हो गई। यदि मिनिमल पॉलीनोमियल के रूट आए सी 2⁻⁴ 2⁻⁴ साडे कोल ओमेगा यदि नॉट ये जिहड़े साडे कोल रूट आए सी हाँ ओमेगा और थर्ड रूट आया सी 2⁻⁴ दे ओमेगा स्क्वायर। ये साडे कोल इहदे रूट्स आ गए सी। इदां ही दूसरे दे असी रूट फाइंड आउट कर सकते सी। तो अगर मेरे को सिग्मा आटोमॉर्फिज्म है तो साडे कोल जिहड़ियां 6 पॉसिबिलिटीज़ आ वो किहड़ियां हो सकदी। सो पहला तो 2⁻⁴ नूं स्टडी करिए। एक तो ये अपने आप ते जाएगी फस्ट पॉसिबिलिटी, दूजी है ये दूजा रूट इहदा है 1/3 ओमेगा नाल, और तीजी पॉसिबिलिटी है दिस इज़ विद रिस्पैक्ट टू 2⁻⁴ ओमेगा स्क्वायर। सो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि साडे कोल 3 रूट आ तो इहदियां 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। और दूसरे पासे जिहड़ी साडे कोल दूसरी पॉलीनोमियल है x² इहदा रूट साडे कोल ओमेगा ते माइनस ओमेगा होणगे। सो दिस इज़ ए जिहड़ी साडे कोल दूजी x² + x + 1 है इहदे रूट 2 होणगे, एक होएगा ओमेगा दूजा होएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इहदियां 2 पॉसिबिलिटीज़ होणगियां। पहली पॉसिबिलिटी है ओमेगे दी ओमेगे नाल। सो पहली पॉसिबिलिटी ओमेगे दी ओमेगे नाल, ओमेगे दी ओमेगे नाल, ठीक है जी। और दूजी पॉसिबिलिटी आ पूरे का पूरा सिस्टम उदा ही लिख लो पहला 2⁻⁴ 2⁻⁴ 2⁻⁴ तो 2⁻⁴ ओमेगा 2⁻⁴ तो 2⁻⁴ ओमेगा स्क्वायर। दूजी पॉसिबिलिटी ओमेगे दी ओमेगा स्क्वायर ना,
ओमेगे दी ओमेगा स्केयर नाल ओमेगे दी ओमेगा स्केयर नाल। ठीक है जी। तो टोटल तुहाडे कोल 6 पॉसिबिलिटीज़ बन गया। इहदा नाम रख ली सिग्मा 1, सिग्मा 2 और दूजी आ गई सिग्मा 3, सिग्मा 4 एंड सो ऑन सिग्मा 5, सिग्मा 6। सो ये साडे कोल आटोमॉर्फिज्म आ गई। तो साडे कोल ये आटोमॉर्फिज्म आपां चैक कर सकते हैं कि दिस इज़ ए, वैसे नॉन कम्यूटेटिव भी होणगियां। सो इहदा ऑर्डर कितना 6 है। सो G of K and Q, it has 6 possibility। फर्स्ट सिग्मा 1 जिहड़ी कि आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर आ गया सिग्मा 2, फिर आया सिग्मा 3, सिग्मा 4 एंड सिग्मा 5, सिग्मा 6। हुण तुसीं इहदे विचों चैक भी कर सकते हैं कि इट इज़ ए नॉन कम्यूटेटिव। तुसीं इनू ते 4 नूं जां किसी नूं चैक कर लो। आलसो इट इज़ ए नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव नहीं है। और सानू पता अगर कोई भी ग्रुप ऑर्डर 6 का होवे, जे तो कम्यूटेटिव आ तो साइक्लिक हुंदा। ठीक है जी। अगर नॉन कम्यूटेटिव आ द आइसोमॉर्फिक टू S3 हुंदा। सो GKQ which is isomorphic to S3। सो दिस इज़ आवर रिजल्ट। तो तुहानू इस ढंग नाल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, प्रूव दैट द गैलस ग्रुप ऑफ दिस पॉलीनोमियल विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू S3। ठीक है जी। सो इस ढंग दे नाल असी जिहड़ा इनू क्वेश्चन नू कर। उस तो बाद असी सैकंड क्वेश्चन की गल कर लीए। सो सैकंड क्वेश्चन दे विच असी की फाइंड आउट करना। सो सानू पहला तो ये देखिए कि सानू गिवन की दिता पार्ट सैकंड दे विच। सो सैकंड दे विच स्टेटमेंट है दिस इज़ अवर पॉलीनोमियल। तो असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये पॉलीनोमियल साडे कोल किद्दां दी हुंदी, इररेड्यूसिबल हुंदी और विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन क्राइटेरिया। फिर असी इहदी स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करनी, फिर शो असी इहदी गैलस ग्रुप फाइंड करना और उहदे तो प्रूव करना कि K इज़ गैलस एक्सटेंशन ऑफ Q। तो अगर साडे कोल गैलस ग्रुप हो गया तो साडे कोल गैलस एक्सटेंशन हो गई। ठीक है जी। सो ये साडे कोल पॉलीनोमियल है। तो फस्ट स्टैप बिल्कुल उस ढंग नाल ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फस्ट स्टैप f(x) असी चूज किया। सो वट इज़ दिस, इट इज़ x रेज़ टू पावर p-1, x रेज़ टू पावर p-2, कंटिन्यू करते जाओ, x + 1 और सानू पता इट इज़ इररेड्यूसिबल ओवर Q। और इहदे विच असी की यूज़ कर रहे हैं, आइंस्टीन क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। आइंस्टीन क्राइटेरिया जिहड़ा है उहदे मुताबिक असी प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर उहदे मुताबिक प्रूव कर चुके हैं सो ये साडे कोल इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल। उन्हां दे रूट फाइंड करने। सो रूट फाइंड आउट किहदे करांगे, x रेज़ टू पावर p-1 इक्वल टू 0 के रूट फाइंड करांगे। उहदे विच x-1 नूं असीं बाहर कढ दांगे। ठीक है। यानी कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x रेज़ टू पावर p-1 ओवर x-1। तो इहदे रूट साडे कोल किन्ने आणगे, सो बाय इहदे रूट आ गए 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा रेज़ टू पावर p-1। तो टोटल p- साडे कोल 1 इहदे रूट्स आ गए और अल्फा साडे कोल किहदे बराबर होएगा, e रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा बाय 2 पाई आयोटा ओवर p। ये अल्फे की वैल्यूज़ आ गई। सो 1 नूं बाहर कढ़ता तो बाकी रिमेनिंग रूट्स आ गए। सो फस्ट सैकंड स्टैप रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल।
तो रूट्स ऑफ साडे कोल पॉलीनोमियल fx विच इज़ अल्फा स्केयर करते जाइए अल्फे रेज टू पावर p माइनस 1 और वेयर अल्फा सानू किहदे बराबर दिता 2 पाई आयोटा ओवर p दिस वैल्यूज दिती है। सो इहदा मतलब की होया अगर साडे कोल ये रूट्स आ गए तो इहदा मतलब साडे कोल की है इहदी स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करिए। तो स्प्लिटिंग फील्ड के विच इज़ क्यू जनरेटेड बाय अल्फा स्केयर सो ऑन अल्फा रेज टू पावर p माइनस 1 हुण अगर अल्फा फील्ड नूं बिलोंग करदा तो उहदी पावर भी बिलोंग करदी। सो बेसिकली इट इज़ ए क्यू जनरेटेड बाय अल्फा दिस आ गया। सो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ k over q? So this is a degree of q alpha over q. So ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिग्री किहदे बराबर आ जाएगी डिग्री ऑफ इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल या मिनिमल पॉलीनोमियल fx ਦੇ बराबर और fx ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किहदे बराबर आ p माइनस 1 ਦੇ बराबर। सो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फाइनाइट ਇਹਦੇ ਚ तीन चीज़ां नोट करो। एक ਤਾਂ करैक्टरिस्टिक ऑफ क्यू किहदे बराबर आ 0 के बराबर है। जे 0 के बराबर आ तो जिहड़ी पॉलीनोमियल आ वो सैपरेबल एक्सटेंशन भी आ जाती है। नाल दे नाल साडे कोल इत्थे ऑलरेडी भी सैपरेबल एक्सटेंशन है तो के साडे कोल आ गया एक आ गया फाइनाइट नाल दे नाल सैपरेबल क्योंकि रूट इहदे डिस्टिंक्ट आ तो साडे कोल सैपरेबल एक्सटेंशन ऑफ क्यू आ गया। सो दिस इज अ सैपरेबल एक्सटेंशन ऑफ क्यू आ गया। दैन इट इंप्लाइज के साडे कोल किदां दा हो गया नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू बन गया। सो दिस इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू। अगर ये नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू बन गया तो उसके मुताबिक डिग्री ऑफ के एंड एफ या ऑर्डर ऑफ जी के क्यू दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर क्यू और यदी वैल्यूज किहदे बराबर है p माइनस 1 के बराबर। यदि बेसिस च p माइनस 1 एलीमेंट आएंगे ठीक है जी। यदा मतलब साडे कोल इहदी आटोमॉर्फिज्म p माइनस 1 बन गया। अगर मैं कोई भी अल्फा या सिग्मा अगर असी जी के क्यू दे विचों लैने तो वो क्यू ते फिक्सड होएगा और सिग्मा नू डिफाइन कौन करेगा उहदे रूट्स करनगे। यानी कि अगर अल्फा इहदा रूट है इफ अल्फा बिलोंग्स टू साडे कोल की है रूट ऑफ दिस तो सिग्मा ऑफ अल्फा दी क्या पॉसिबिलिटी आ गई आर कंजूगेट टू साडे कोल आ गया सिग्मा अल्फा आर कंजूगेट टू अल्फा। तो व्हाट इज दिस पॉसिबिलिटी? सो सिग्मा अल्फा दी पॉसिबिलिटीज आ गई जा तो अल्फा होएगा जा अल्फा स्केयर होएगा जा अल्फा क्यूब होएगा और करते जाइए अल्फे की पावर p माइनस 1 तक होएगी और इनू असी इस ढंग नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं सिग्मा अल्फा विच इज़ इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर i फॉर एवरी i रनिंग फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन अप टू p माइनस 1। सो वी गेट द इत्थे सिग्मा ही लिख लीए। सो साडे कोल सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा p माइनस 1 ये साडे कोल इस तरह की आटोमॉर्फिज्म आ गई। सो वट इज़ जी के क्यू? सो दिस इज़ ए सैट ऑफ आटोमॉर्फिज्म। ये एलीमेंट आ गए सिग्मा 1 जिहड़ी कि आइडेंटिटी मैप होएगी सिग्मा 2 जिहड़ा साडे कोल अल्फा स्केयर नाल जनरेट होएगा सिग्मा 3 एंड सो ऑन अप टू सिग्मा p माइनस 1 और दिस इज़ ए साइक्लिक ग्रुप बिकॉज इट इज़ जनरेटेड बाय अल्फा। तो ये असी बड़े
क्लीयरली देख सकते हैं कि दिस इज़ जनरेटेड बाय अल्फा। ठीक है जी। सो अल्फा अल्फे की पावर साढ़े कोल 1 2 तो पी साढ़े कोल आइडेंटिटी के बराबर आ जाता। सो ये साढ़े कोल ऑर्डर कितना आ पी के बराबर आ है। सो दिस इज़ ए साइक्लिक ग्रुप जी के क्यू। ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर साढ़े कोल दिस आ गया। नाल दे नाल इनू आपां ये भी कह सकते हैं वट इज़ के साढ़े कोल बन गया इट इज़ ए गैलस एक्सटेंशन ऑफ क्यू, एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड क्यू, क्योंकि जी के क्यू साढ़े कोल किदां दा हो गया, ए हो गया दिस इज़ ए जी के क्यू साढ़े कोल किदां दा हो गया, गैलस ग्रुप हो गया जिहदे विच फिक्सड फील्ड क्यू दे बराबर है। सो अगर क्यू फिक्सड फील्ड है ये विच, सो दिस इज़ पॉसीबल। इनू असी गैलस एक्सटेंशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्यू जिहड़ी है इट इज़ फिक्सड फील्ड अंडर जी के क्यू, अंडर जी के क्यू। सो इस ढंग नाल असी बहुत सारे क्वेश्चन वैसे तो डिस्कस कर ले आ, और इस ढंग नाल असी कोई भी क्वेश्चन आ जाए उन्होंने असी प्रूव करना। उस तो अगला क्वेश्चन साढ़े कोल की है कि असी फाइंड आउट करना क्वेश्चन नंबर 3 च फाइंड द ऑल कंजुगेट, कंजुगेट मीन रूट्स, तो फाइंड द ऑल कंजुगेट ऑफ अल्फा है ना। सो पहला तो दी मिनिमल पॉलिनोमियल लभी है दिस ओवर द फील्ड क्यू शो दैट क्यू अल्फा इज़ द गैलस एक्सटेंशन ऑफ क्यू। सो ये सानू एक रूट दिता है, उस तो बाद असी इरोड्यूसिबल पॉलिनोमियल लभनी, फिर रूट्स लभने, फिर उस तो बाद साडी जिहड़ी है अगला स्टैप असी करांगे। नाउ इन दिस केस वट इज़ अल्फा, अल्फा सानू दिता स्केयर रूट ऑफ 2 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3। तो आपां मिनिमल पॉलिनोमियल लभने क्यू दे उत्ते, तो दिस इज़ अल्फा माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 3। तो स्केयर रूट नूं असीं रिमूव करना, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अल्फा माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 विच इज़ स्केयर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर दिस। सो इट इम्प्लाइज अल्फा स्केयर माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू अल्फा प्लस इक्वल टू, and this is equal to 3. So again this value is equal to alpha square minus 1, इन्हों इधर शिफ्ट किया माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इंटू अल्फा। सो फिर स्केयर कर दईए, जो फिर स्केयर किया ये आ गया अल्फे दी 4 माइनस 2 अल्फा स्केयर दिस प्लस साढ़े कोल 1, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8 अल्फा स्केयर। इधर स्केयर किया 4 दूनी 8, 8 अल्फा स्केयर। सो 8 नूं इधर शिफ्ट करता, सो वट वी गेट अल्फा रेज टू पावर 4 माइनस 10 अल्फा स्केयर, इधर शिफ्ट किया माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यदि साढ़े कोल क्यू दे उत्ते जिहड़ी पॉलिनोमियल बन गई वो इस तरह की बन गई। अगर इस तरह की बन गई तो वट इज़ दैट पॉलिनोमियल, उन्होंने असी चैक कर लिए। सो दैट पॉलिनोमियल पहला असी कंस्ट्रक्ट कर ली एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स दी पावर 4 माइनस 10 एक्स स्केयर, फिर आया प्लस 1। सो दिस इज़ ओवर क्यू, क्यू की है सैट ऑफ रैशनल नंबर्स। हुण आपां देखिए कि क्या ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है, तो ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होएगी। सो दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स विच इज़ ए इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। ठीक, तो यदा मतलब ये जी डिग्री आ के दी ओवर दिस वो किहदे बराबर हो जाएगी, वो साढ़े कोल डिग्री जिहड़ी आ वो 4 के बराबर हो जाएगी। हुण आपां इहदे रूट फाइंड आउट करने। सो दिस जिहड़ी साढ़े कोल इक्वेशन है ये साढ़े कोल 4 रूट्स होणगे क्वाड्रेटिक दे विच। असीं इहनूं सॉल्व कर लैने बना के,
किद्दां कर सकते हैं, Z लै लो तुसी एक्स स्केयर के बराबर, तो तुहाडे कोल Z आ गया Z स्केयर माइनस 10Z प्लस 1 इक्वल टू 0। सो Z इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 AC बाय साढ़े कोल 2 आ गया। सो 10 प्लस माइनस 96 स्केयर रूट, ठीक है जी, नीचे आ गया 2। इधर तो साढ़े कोल 5 बनेगा और इधर देख लीए साढ़े कोल दिस वैल्यूज़ कितनी बन जाएगी, ठीक है। एक तो इस ढंग नाल भी कर सकते हैं, दूजा असी जिस ढंग नाल डबल किया सीगा तो ये जिहड़े सानू पता इट इज़ ए पॉलिनोमियल ओवर जिहड़ा है दिस इज़ ए पॉलिनोमियल ओवर क्यू। तो कोफिशिएंट ये अगर ध्यान नाल देखिए रैशनल नंबर आ तो सानू पता भी जिहड़े रूट्स हुंदे आ वो किहदे विच आउणगे। मान लो इस सर्ड्स दे विच रूट आ √2 प्लस √3, तो दो पॉसिबिलिटी इहदियां हो गया प्लस माइनस और दो ही इहदियां हो गई प्लस माइनस। तो साढ़े कोल इहदे रूट्स आ गए +2 प्लस √3, एक आ गया जी। फिर आया √2 माइनस √3, फिर आया जी माइनस √2 प्लस √3, फिर आया माइनस √2 एंड माइनस √3। सो टोटल 4 रूट्स आ गए और इनू असी इकट्ठे लिखना हो तो प्लस माइनस इदा 4 रूट भी एक्सप्रैस कर सकते हैं। सो असी डायरैक्टली ही ये 4 रूट्स जोड़े फाइंड आउट कर ले। अगर 4 रूट फाइंड कर ले तो स्प्लिटिंग फील्ड ये किहदे बराबर आ गई, क्यू जनरेटेड बाय अल्फे दे, और अल्फा साढ़े कोल किहदे बराबर है √2 प्लस √3 के बराबर। सो वट इज़ इट्स डिग्री, डिग्री ऑफ के ओवर क्यू ये आ गया मिनिमल पॉलिनोमियल, वो किहदे बराबर आ गई 4 दे। सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए फाइनाइट सैपरेबल एक्सटेंशन, फाइनाइट सैपरेबल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आ गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ये नॉर्मल एक्सटेंशन हो गई ऑफ क्यू, क्योंकि करैक्टरिस्टिक ऑफ क्यू कितना है 0 के बराबर, और दिस इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन। अगर नॉर्मल एक्सटेंशन हो गई सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल एक्सटेंशन तो के साढ़े कोल बन गया नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू। अगर नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू है तो ऑर्डर ऑफ जी के क्यू विच इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर क्यू, और एक किहदे बराबर हो रहा, ये हो रहा 4 के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े कोल 4 आटोमॉर्फिज्म होणगी। तो ਇਹਦਾ मतलब क्यू साढ़े कोल फिक्सड फील्ड हो गई तो ये एक्सटेंशन तो बनेगी, पर असी ਇਹਦੀਆਂ 4 आटोमॉर्फिज्म भी लभ ਲਈ। सो एक आ गई इफ सिग्मा बिलोंग्स टू किहदे बराबर आ, सिग्मा इज़ इक्वल टू दिस वैल्यूज़, किहड़ी वैल्यू आ गई साढ़े को सिग्मा ऑफ दिस वैल्यूज़ विच इज़ जी ऑफ के एंड क्यू। then this has 4 possibility, sigma of √2 plus √3 ਜਾਂ कोई भी एलीमेंट आप लैने उन्होंने असी किस ढंग नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं। सो वो साढ़े कोल 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। एक आ गई दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3, ठीक है जी। सो एक का ना सिग्मा 1 रख दो, सिग्मा 2 सो ऑन। सो जी के क्यू, सो दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 सिग्मा 4। सो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 साढ़े कोल की हुंदा अबेलियन हुंदा। तो जी के क्यू साढ़े कोल अबेलियन ग्रुप भी हो गया। नाल दे नाल क्योंकि क्यू ये फिक्सड फील्ड बन रही है, जे फिक्सड फील्ड बन रही अंडर क्यू जिहड़ी है ये किदां दी आ, सो दिस इज़ ए फिक्सड फील्ड अंडर जी के यू, जी के क्यू, ठीक है। सो अगर तो क्यू ये अंडर फिक्स फील्ड बन जाए
ਤਾਂ K ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਲਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ in that case, so what we called K is a Gallus extension of Q। ठीक है जी। सो असी गैलस ग्रुप किद्दां फाइंड आउट करना वो फाइंड आउट कर लिया और नाल दे नाल असी उस थ्योरम नूं भी यूज़ कर लिया। हुण आपां बिल्कुल तैयार हाँ अगली इंपॉर्टेंट जिहड़ी थ्योरम है ਉਹਨੂੰ डिस्कस ਕਰਨ ਲਈ। सो अगले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ असी डिस्कस करांगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलस थ्योरी। तो लैक्चर नंबर 8 च असी सिर्फ उस थ्योरम ਨੂੰ डिस्कस करांगे और उस तो अगले लैक्चर च लैक्चर नंबर 9 ਦੇ ਵਿੱਚ असी ਉਹਦੀ एप्लीकेशन डिस्कस करांगे।